my team would like to thank Dr. Yogesh Lakhani, as his dedication and hard work is truly inspiration for all of us. Taking this opportunity, the company, my teammates, and I sincerely thank BSE Sherni Shares Private Limited for supporting us. I also thank my team members who worked day and night as family to achieve this milestone and help care throughout this company development. We thank all our company's business partner and client who has provided constant support to us. And last but not least, all the investors who have voted for us so that Bright Outdoor is able to reach next milestone. Thank you once again for all of the guests present today and best wishes to all. Thank you. Such a robust audience. So, very warm welcome. This is the 20th listing for Sherni Shares Private Limited as the lead manager, and we are very excited that this has been largest IPO handled by us till date of 55.48 crores. The issue was 38 lakh shares at 146 rupees per share. It got subscribed 1.22 times. I must say we had countless meetings for this IPO and everybody contributed to the level best. But I must thank a lot of people. First to start with Dr. Yogesh Lakhani of Bright Outdoor Media Limited, Shekhar and the entire team of Bright, who thought that we are eligible and to be the lead manager for this IPO. Secondly, to Bombay Stock Exchange, starting with Shreya Kumar Thakur, head of BSE SME and Startup Exchange. I still remember the day when we were struggling between where to get filed and how would be the size of IPO. But I must say that he stood strong, and I think he's the only reason that this company is getting listed here today. And I'm just saying this from my heart because I have seen the ups and downs, and so I must thank him. And he helped us in all the ways possible when the IPO size were getting revised here and there, but he stood strong. His words have always given us a lot of comfort, and thanks to him, thanks to Mr. Samir Patil ji and the entire BSE and compliance team of SME. Coming to my team, I must thank the entire team, starting with Divya, Krunal, Shamal, Tushar, Nisha, Kritika, Pooja, Kajal, and everybody, Ankita, Dhaval, and Vishal, who have done a great job in this. Every IPO carries a story, and as the lead manager, we are here to sell stories. So that's how this works out. I'm really thankful that we are being invited here today, and we have a lot of audience and progress here. So we are truly
प्रसाद लाड जी विधान परिषद सदस्य, सभी को हंसाने वाले जिनका अभिनय मुझे भी बहुत अच्छा पसंद है, ऐसे शेखर सुमन जी, हमारे दूसरे आदरणीय मनोज जोशी जी, सलीम मर्चेंट जी, और जिनके निमंत्रण से मैं विशेष रूप से यहाँ आया हूँ, जिनका फ्यूचर भी उनके कंपनी के नाम जैसा ब्राइट होगा, ऐसे लोग योगेश लाखानी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी प्रिय भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम मेरी ओर से श्री लाखानी जी को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और भगवान सिद्धि विनायक से प्रार्थना करता हूं कि इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे जो उनकी मनीषा है वो पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद भगवान सिद्धि विनायक उनको दे। मुझे पता नहीं था कि वैसे वो मुंबई की है, महाराष्ट्र के है, मगर गुजराती भी है, क्योंकि अभी जब आवाज दे रहे थे तो केम छे ऐसा वगैरह बात कर रहे थे। तो 21वीं सदी वैसे भी गुजराती भाइयों के लिए सबसे अच्छी है, तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में वो काम करेंगे उसमें टॉप ही रहेंगे। एक बात सही है कि मैं विशेष रूप से लाखानी जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा, जब मुझे ये जानकारी मिली कि ये तो एक व्यवसाय है जिसमें वो आगे बढ़ते ही जा रहे, कई लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया, काम भी दिया, और कुछ कंपनियों को विज्ञापन के माध्यम से चमका भी दिया। उनके खुद के कंपनी में तो रोजगार है 200-250 का, मगर उनके बोर्ड के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिले ऐसी व्यवस्था है, वो विज्ञापन के माध्यम से करते हैं। चेहरे पे कभी भी देखो, उनके चेहरे पे हमेशा हंसी दिखती है, और ये बात सही है, जिसके चेहरे पे हंसी दुनिया उसके लिए फंसी। और इसीलिए उनके कंपनी के साथ में जब मैं कंपनियों की लिस्ट देख रहा था कि उनके क्लाइंट्स कितने हैं, तो इतने बड़े बड़े नाम दिखे, हमारा नाम छोड़कर। लाखानी जी कभी कभार एडवर्टाइजमेंट में हमेशा मुनाफा देखते समय कुछ एडवर्टाइजमेंट हमारे लोगों को भी फ्री में करते जाइए। अभी शायद आपने शुरुआत की है, आज महाराष्ट्र भूषण आशा भोसले जी के कार्यक्रम की एडवर्टाइजमेंट आपने की है, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर दूसरी विशेषता जो मुझे दिखी, प्रोफेशन के बाद सेवा के मिशन की, कि अपने मुनाफे से वो डायलिसिस के लिए जब खर्च कर रहे हैं, ये मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि व्यवसाय व्यापार करना ये तो अपने लिए आवश्यक होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि खुद कमाए खुद के लिए खर्च करे, ये तो प्रकृति है, और खुद कमाकर समाज के लिए कुछ खर्च करे, यही भारत की संस्कृति है। मैं माननीय लाखानी जी को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामना देते हुए, लाखानी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इतना बताकर मैं अपने इस मनोगत को यहां विराम देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ओपनिंग के कार्यक्रम के लिए उपस्थित महाराष्ट्र के वन मंत्री, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सम्माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी, बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के सम्माननीय एमडी जी, व्यासपीठ पर उपस्थित सुप्रसिद्ध अभिनेता शेखर सुमन जी, मेरे मित्र जग प्रसिद्ध अभिनेता मनोज जी, समीर जी, श्रेणी शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के दोनों ओनर्स, और इस कार्यक्रम जिनके लिए किया जा रहा है वो मेरे मित्र और ब्राइट इंडोर आउटडोर मीडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश लखानी जी, और यहाँ उपस्थित योगेश जी पे प्यार करने वाले सारे मेरे भाई और बहनों। सुधीर बाबू, आपने बहुत ही अच्छी योगेश के लिए बात कही, लेकिन मैं दो चीज़ ही योगेश के लिए कहना चाहूँगा कि मैं योगेश को तब से जानता हूँ जब योगेश जी 1 रुपये की माचिस की टिकिया बाजार में बिका करते थे, और वहाँ से स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग तक आना और खुद की कंपनी को मार्केट में लॉन्च करना, ये अपने आप में हिंदुस्तान में एक बड़ी बात है। और योगेश जी का हर कदम, हर मेहनत हमने देखी है, रात भर दिन भर काम कर एक खुद का ब्रांड, और ये इंडस्ट्री जहाँ पर पूरी जगमगाट है, फिर वो फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो, और हर एक के साथ संबंध रखकर, जैसे सुधीर बाबू ने कहा, अगर हम कोई कार्यक्रम अनाउंस करते हैं तो हमें पॉलिटिकल करके फ़ोन नहीं करना पड़ता कि योगेश भाई 100 होल्डिंग दो, वो खुद ही फ़ोन कर लेते, प्रसाद भाई 100 होल्डिंग मैंने रख ली है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए कायम उनके होल्डिंग सुधीर बाबू फ्री रहते। और एक ऐसे व्यक्ति के कार्यक्रम के लिए हमारा अधिवेशन होने के बावजूद भी हमारे मंत्री और हम खुद स्वयं आए हैं, माननीय हमारे नेता आशीष शेलार जी भी आ रहे हैं, सिर्फ उनके प्यार के लिए आए हैं। और मैं तो सिद्धिविनायक मंदिर का विश्वस्त रहा हूँ, तो मैं गणपति बापा की प्रार्थना शायद मेरी ज़्यादा सुन लेंगे। मैं गणपति बापा से प्रार्थना करूँगा कि योगेश का ये जो इशू है वो 100 टाइम नहीं 200 टाइम सब्सक्राइब होना चाहिए, और मार्केट में उनकी कल और बढ़नी चाहिए। ये कहते हुए मैं उन्हें फिर से मन से शुभकामनाएं देता हूँ, और उनकी तरक्की को सलाम कर मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Humble thanks to you, dear sir. Ladies and gentlemen, may I please request you to continue this. सर्वप्रथम मेरे को इधर बुलाने के लिए आभार और धन्यवाद। Honestly, I was not prepared for this. Yesterday morning today morning 1:30 I landed, and I was not sure whether I could make it. Lakhani ji was calling me yesterday and said, whatever be the time, if you could for one day make it a bit okay and come and attend this function, it will be great. I do not want to take too much of time. I just want to talk about only one point. Here we have an example who is a self-made man and who has risen up from wherever he was to whatever he is, with a clear bent of having social service as a part of his journey. I am very fond of quoting Sanskrit verses because there are a lot of things to learn from them. One verse which I often quote and I want to repeat here. Udhyoginam Purusha Simham Upaiti Lakshmi Daivena Deyamiti Kapurusha Vadanti Daivam Nihatya Kuru Paurusham Atma Shaktya Yatne Krite Yadina Siddhyati Kotra Doshaha. This is a verse written by a very old saint, very many years before. What does this mean? English please. Yeah, Hindi please. That's what we will say, right? Udyoginam Purusha Simham Upaiti Lakshmi. Purusha Simham means man lion. It doesn't have any gender issue here. What it says is a brave person. A brave, why you should be brave? Because you will always face a lot of difficulties in life. Every step you take, there will be a lot of naysayers, there will be a lot of challenges. Very few people take
challenge as an opportunity, most of the people take challenge as an obstacle. A brave man, or rather a brave person, I don't want to say brave man, a brave person takes every challenge as an opportunity and becomes industrious. Udyoginam Purusha Simham. What happens to him? Upaiti Lakshmi. Wealth comes to him. What does it mean? He doesn't go in search of wealth. Wealth comes to him. So that is one set of people. What is the most set of people? Daivena deyamiti kapurusha vadanti. Cowards, that is whoever is not brave to face obstacles, they all are cowards. What happens to them? They come and lament. You know what? I was not in the right place at the right time, though I am the right person. You know what? I am always unlucky. You know what? He is always lucky. All this finding excuses in respect of others to tell why he has not succeeded. Who does that? Cowards. So what you should do? Daivam nihatya. Kill that concept called luck. Kuru paurusham atma shaktya. With your own self-respect, self-dependence, do whatever best you could do. Okay, so if I do, am I assured of success? Maybe no. But yatne krute yadina siddhyati potra doshaha. If you have put in your effort and if you have not succeeded, so what? At least you will go home thinking that I have done my best. Well, maybe I am not destined this time, next time. So that's what we find here as a person. I want to congratulate him on this occasion, and I also want to thank him for granting this opportunity to me. I am not in a position to talk more about him because I did not come prepared. Not only that, I have others also to speak, and there are other things. So thanks once again for listening to me, and thanks for this opportunity, and all the best to you. Humble thanks to you, dear sir. I would please request Roshan. मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री सुधीर मुंगतीवार जी, बीएससी के एमडी सीईओ श्री सुंदरमन राममूर्ति जी, आदरणीय श्री शेखर सुमन जी, श्री मनोज जोशी जी, समीर पाटिल जी, योगेश लखानी जी, प्रसाद जी, पाठ जी, यहाँ पे आए हुए तमाम अतिथिगण, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज यहाँ पे 428वीं कंपनी ब्राइटकॉम की लिस्टिंग पे यहाँ पे आप लोग सुबह सुबह पधारे और आज योगेश जी को सम्मानित किया। आदरणीय सुधीर मुंगतीवार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे 100वीं कंपनी सूचीबद्ध हुई थी तो आप यहाँ आकर के हम लोग को आशीर्वाद प्रदान किया था, और फिर जब 350वीं कंपनी सूचीबद्ध हुई थी तो फिर आप यहाँ पे आए और हमें आशीर्वाद प्रदान किया। मेरे ख्याल से शुरू से ही एक से एक व्यक्ति यहाँ पे आते गए, और इनफैक्ट 300वीं कंपनी में आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी आकर के हमें आशीर्वाद प्रदान किए थे। तो ये एसएमई प्लेटफॉर्म अगर आप देखें तो हमारा ये मेन मकसद जो था ये एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने का, वो ये था कि हम जो इस देश की लघु और मध्यम उद्योग है, जिसे हम बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, उसको हम कैसे मेन धारा से जोड़ें और उसके उत्थान के लिए हर हमेशा कदम उठाएं। आज उसी कड़ी में योगेश लखानी जी की ब्राइटकॉम यहाँ पे लिस्ट हो रही है। मेरे ख्याल से इस सेक्टर की ये पहली कंपनी है जो बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो रही है, और 55 करोड़ का आईपीओ है, 55 करोड़ का। और इतने खराब मार्केट में ये 2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। ये आप समझ सकते हैं इनके प्रति लोगों का प्यार और मोहब्बत और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। और पहली बार ऐसा हुआ है कि योगेश जी के चलते इस मंच पे महान राजनीतिक और फिल्म कलाकार एक साथ उपस्थित थे। मैं योगेश जी के जीवन वृत्तांत को भी देखा है मैंने, और किस तरह इन्होंने चैलेंजिंग टाइम्स को, जब ये पेपर बेचा करते थे, वहाँ से आज इन्होंने एक 250-300 करोड़ की कंपनी बना ली है। मेरे ख्याल से आगे चल के जिस तरह से इस देश में इकोनॉमी ग्रो हो रही है, मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में योगेश जी की कंपनी 500 और 1000 करोड़ की कंपनियां होगी, और इस देश में
ये बहुत ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करेगी। हम ये चाहते हैं कि बीएसई के साथ जो भी कंपनी जुड़े वो काफ़ी अच्छे इंटेंशन से अपना काम करते हैं, सारे कंप्लाइंसेस को फॉलो करें, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखें और हम सब लोगों को इनके ऊपर आगे चल के गर्व हो। योगेश जी, आप काम करते रहिए, अच्छे से काम करते रहिए। हम सब लोगों का आपके साथ अच्छे विशेष है, इसी तरह आप लोग करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Ladies and gentlemen, it's time for us to truly have a countdown. The next मोबाइल नीचे ले, ये मोबाइल नीचे ले, अरे ये मोबाइल तेरी सर होल्ड सर होल्ड। आप सब लोग यहाँ बिजी वक्त होने के बाद भी आए और मुझे इतना साथ दिया। मैं ब्राइट की टीम का, भगवान का, मेरे पेरेंट्स का, मेरी वाइफ का और मेरे सब स्टाफ, फ्रेंड्स, दोस्त सबका शुक्रिया करता हूँ। और मैं रोड पे न्यूज़पेपर और माचिस बेचता था और मेरा जब जन्म हुआ ना तभी हम लोग 10x10 के रूम में रहते थे और 100 रुपया नहीं था। तब से मेरी जर्नी चालू हुई है और आज इंडिया में टॉप ब्रांड्स और हज़ारों होर्डिंग्स और लाखों मूवीज़ और सबका काम सब भगवान और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से सच्चाई से आज मैं इस मुकाम तक आया हूँ। मेरे फ्रेंड्स और मेरे कंपनी के डायरेक्टर और स्टाफ और बीएसई का स्पेशली मैं शुक्रिया करता हूँ और एमडी सर का जो मेरे एक पोल पे मेरे लिए इतने आए, मेरे लिए उनके लिए धन्यवाद। और अजय ठाकुर जी और संदीप सर, अमित मेहता जी, पार्थ भाई, निधि और शेखर भाई, मनोज भाई, प्रसाद नाथ सर और सुधीर सर और मुंगटीवार सर जो आए यहाँ सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ दिल से। थैंक यू। और एक पर फिल्म बने तो हम जरूर बनाना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट योगेश भाई। और सिर्फ मतलब सादगी तो इनमें फूस के बनी हुई है, फूट के बनी हुई है और ऑडियो कम कर दो। समाज सेवा का काम भी बंदी कर बढ़िया करते हैं बिना बोले, ऑडियो बंदी कर दिया। सच्चे अर्थ में अपना जो जैन धर्म है उसका भी अच्छा पालन करते हैं और एक बिजनेसमैन है। अब कितने प्रोड्यूसरों को उन्होंने हेल्प की होगी और कितने प्रोड्यूसरों ने चुना भी लगाया होगा, बट फिर भी वो इंडस्ट्री में, आज की इंडस्ट्री में ये ब्राइट का आईपीओ आना ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा आरंभ है, ये ऐसा आगाज है कि आने वाले 5-10 साल इंडस्ट्री 4 गुना 8 गुना निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं। थैंक यू वेरी मच। हैरत की बात ये देखी कि जिस होर्डिंग की शुरुआत उन्होंने की दूसरों के लिए, आज उसी होर्डिंग में सबसे बड़ी तस्वीर होगी। यस यस यस। बहुत जुड़े दोस्त हैं, उनकी पहली फिल्म और मेरी पहली फिल्म के टाइम, स्ट्रगलिंग के टाइम से मेरे फ्रेंड और मेरे हर इवेंट में आए हैं। शेखर जी का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ
और मनोज भाई के लिए मेरे को एक चीज़ बहुत याद है कि इनका चाणक्य प्ले था, उनका मुझे लगा नहीं सुनिए, मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने आप में इतिहास करने वाले मनोज जोशी जी का प्ले के कितने शो हो चुके हैं अब तक? 1793 के लिए बोला था 1793 हिस्टोरिकल हिंदुस्तान मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी शो प्ले का या कोई भी प्रोग्राम में इतने सारे शो नहीं हुए। मैं ये शो का नाम इसके लिए लिया कि चाणक्य प्ले में मनोज भाई ने मुझे मोदी जी से साथ भेजाई थी, इसलिए मुझे याद है उसी। थैंक यू योगेश भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये IPO आज शाम को रिकॉर्ड ब्रेक हो और आप भी रिकॉर्ड ब्रेक हो और भी दोनों हीरो आप तो जाने फाइनेंस की जिम्मेदारी मेरी है। योगेश भाई वो तो ऐसा इसमें काफी लोग मुझे प्रेरित रहा है, मैं भी योगेश, दोनों योगेश है। मैंने बोला 500 के पास सबको बोला कि आपका 420 लेके 500 हमारा होगा, आप ही लोग चीफ गेस्ट होंगे, आपको अभी से आना। धन्यवाद। अभिनेता तो ऐसा, बिजनेस तो ऐसा, बिल्डर होता है ऐसा, इंसान हो तो ऐसा। नहीं शेखर साहब, आपको अभी हम दोनों को बता रहा हूँ, हमारा एक इंसान हो तो ऐसा जो एंजलिंग करना है। नहीं योगेश भाई हम कल दोनों चले जाएंगे, हमारे पास 100 बिजनेसमैन पैदा हुए, 100 अच्छे नेता हुए, उसका जो रेट सेलिंग आज जो स्टूडियो लाना है, आप दोनों एंजलिंग करेंगे, वो प्रोजेक्ट लाए, उसी का भी IPO लाए, हम चारों मिलकर भारत में नए इंसान पैदा करें, हम सब चले जाएंगे। इसके बाद कौन उसका जो तैयारी करना है हम साथ में मिलकर करेंगे। अब सब चले जाएंगे, भारत भी चला जाएगा, हिंदुस्तान चला जाएगा, विश्व चलाएगा, सिर्फ एक ही इंसान होगा योगेश। चलो श्री योगेश लाखानी ये नाम जब से मैं ये फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ तब से सुन रहा हूँ और तब से उनको देख रहा हूँ। एक सामान्य लघु से टेबल पे ऑफिस में सामान्य उद्योग की शुरुआत उन्होंने उस समय की थी। उस समय से मैं आज उस भारत का IPO सच में या आत्मनिर्भर भारत में एक उद्योगपति छोटे से उद्योग से लेकर इतना बड़ा उद्योग जिसका IPO है, एक असामान्य एक सामान्य इंसान एक असामान्य काम करके दिखाया नहीं भगवदगीता की योगी धर्म कौशल आगे आए बस उनका सेवा भाव उनका जो भी समाज सेवा का कार्य है वो भी ऐसा ही अविरत चलता रहे और योगेश ऑल द बेस्ट योगेश भाई। सवाल एक ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक ऐतिहासिक क्षण योगेश लाखानी के लिए, ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड के लिए एक ऐतिहासिक पल। एक ऐसे इंसान जो एक साधारण इंसान के असाधारण
सफ़र की एक दास्तान है, कहानी है। ये कैसे अपने दृढ़ संकल्प से, लगन से, मेहनत से और धैर्य से उसने एक इतना लंबा सफ़र तय किया है, और जिस गति के साथ इसको सालों से पूरी इंडस्ट्री जानती है, पहचानती है। और मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी सादगी और इनका मनोबल। जिस सादगी और मनोबल के साथ सबके साथ हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, इन्होंने दिनों को जीता, और उस वजह से आज ईश्वर ने इनको इतना बड़ा मकाम दिया है। और वही सादगी आज भी इनमें वाबस्ता है। आप जब भी इनसे मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे, और हमेशा मदद के लिए तैयार। ये नहीं कि कभी किसी से मांग लिए और देने के वक्त मुकर गए, ऐसा भी नहीं है। योगेश का हृदय जो है, दिल है, वो बहुत बड़ा है। और जैसा मैं कह रहा था, पूरी धैर्य के साथ, अपनी क्षमता के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ वो आगे बढ़ते आए। और आज वो दिन देखने को मिल रहा है जो बहुत लोगों का सिर्फ एक ख्वाब होता है, और कहीं ना कहीं घूम के ख़त्म हो जाता है। IPO डालना अपनी कंपनी का एक बहुत बड़ी बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सेहतमंद रखें, इनके मंगल कामना करता हूँ, और मेरी शुभकामना इनके साथ है कि जीवन में इसी तरह ये लगातार प्रगति करता है। योगेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्टॉक एक्सचेंज में आ गए, क्या कहना चाहिए? मेरे लिए ब्राइट के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने ज़िंदगी की शुरुआत रोड पे न्यूज़पेपर बेच के और शेयर्स के फॉर्म रोड पे न्यूज़पेपर की तरह लोगों को दिए हैं। उसमें से मैंने 0 से हीरो की जर्नी की, और 1 लाख मूवी, 1 लाख अवार्ड, इवेंट्स, और 43 इयर्स की जर्नी के बाद, हार्ड वर्किंग के बाद मुझे ये मुकाम आया कि मेरा खुद की कंपनी का IPO लॉन्च हुआ है, और ऐसे मार्केट में लॉन्च हुआ, और इस तरह से अच्छा डबल 1.90% लोगों ने पैसा भरा और रिस्पॉन्स दिया। तो मैं सभी का, मतलब भगवान का, माँ बाप का, मेरी टीम का, मीडिया का, PR का, और सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे इस तरह इस लेवल पे लाने के लिए मदद की है। सर, क्यों ऐसा फील हुआ कि अब IPO में आना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा कि अगर मेरे को बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ाना है, डिजिटल करना है, अभी होर्डिंग्स तो डिजिटलाइज करते हैं तो उसका बहुत खर्चा है। आजकल देखा जाएगा फॉरेन में चलती है LED, सोलर प्रोजेक्ट करना है, और मेरे को नए नए टेंडर्स लेने थे, बिजनेस बढ़ाना था, तो मैं अकेला कितना बढ़ा सकता। तो पब्लिक अगर मेरे साथ जुड़ेगी तो मैं मल्टीपल में आगे बढ़ेगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे IPO की? बस मैं, भगवान करे मेरा अच्छा धंधा चले, मैं आगे पैसा कमाऊं और लोगों को डिविडेंड दूं, और होनेस्टली काम करूं, और डबल मेहनत करूं, और डबल फोर्स में होनेस्टी से काम करके भगवान मुझे साथ देवे, और मैं लोगों को, मतलब उनकी अपेक्षा में पूरा पढ़ूं, और बस सभी को कमा के दूं, खुश रखूं, वादा पूरा करूं, और आगे बढ़ूं, और बस समाज सेवा उसके बाद करूं।